Okay, so good morning, students. And now, in today's video, we shall continue our chapter, that is Lifelines of National Economy, of chapter number 7. Please check out page number 82 in your textbooks. Okay, chalo. Now, beta, in the previous video, we had discussed about the introduction of the chapter, that is your Lifelines of National Economy. In that, we had discussed about the means of transportation. We discussed that there are three types of means of transportation: land, water, and air. And these three are further divided into subparts. Land is divided into three parts, that is roadways, railways, and pipelines. Water is divided into two parts: inland waterways, overseas waterways. And airways is again divided into two parts: domestic airways and international airways. ठीक है, ये that we had discussed in our previous video. In today's video, we shall discuss all of these in detail one by one. Okay, so first of all, we shall discuss about this transport. And in transport, we shall discuss about roadways. We shall discuss about roadways. Now, for why transport, आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि there are two types of that we call lifelines of national economy. One is the means of transportation and other one is the means of communication. So first of all, we shall discuss about the means of transportation. After completing means of transportation, we shall discuss about the means of communication. Okay, so in transport, in the means of transportation, first of all we will discuss roadways. ठीक है जी, देखो बेटा, कहते हैं India is one of the largest road networks in the whole world, aggregating to about 2.3 million kilometers at present. And roadways in India have preceded the railways also. ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है. हमारे देश में देखो ना, रोडवेज जो है one of the largest roadways network in the whole world. Road network in the whole world. ठीक है. Also, more roadways are there. More roadways are there as compared to the railways, as compared to the railways in India. ठीक है ना, हमारे देश में रोडवेज ज़्यादा है, रेलवेज कम है. मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवेज बहुत कम है, पर इफ़ वी कंपेयर दीज टू, इफ़ वी कंपेयर रोडवेज with the railways, then we will find that roadways are of more kilometers as compared to the railways in India. ठीक है ना, रोडवेज ज़्यादा लेंथ में है इंडिया में as compared to the railways. उसके अलावा बेटा देखो, the roadways has a very great importance in the economy of our country, because इंडिया में क्या है, देखो यहाँ पर टोपोग्राफी ऐसी है कि सभी जगह रेलवे लाइन्स बिछाना पॉसिबल नहीं. कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पहाड़ है, गहरी खाइयाँ भी है, तो सभी जगह रेलवेज नहीं बिछाए जा सकते. तो बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहाँ पर रोडवेज से काम चलाया जाता है. और रोडवेज हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश की लाइफलाइन की तरह काम करती है इकोनॉमी की, बिकॉज रोडवेज जो है ये दूर दराज के एरियाज़ को भी कनेक्ट करने का काम करती है. आपने देखा होगा जो हिमालयन रीजन्स है, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, ठीक है, उत्तराखंड में, यहाँ दूर दराज के एरियाज़ में कोई रेलवेज नहीं पहुँचती, वहाँ सिर्फ रोडवेज पहुँचती है. तो वहाँ के एरियाज़ को, इतने दूर दराज के एरियाज़ को बाकी इंडिया के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करती है? रोडवेज. दैट्स वाई रोडवेज इज़ डेफिनेटली कॉल्ड एज द लाइफलाइन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी. और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि दुनिया के हर देश के लिए. रोडवेज का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए. इज दैट क्लियर बेटा? नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन प्लीज. हाँ, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन. हाउ कैन यू से दैट roadways has more importance as compared to the railways in India? Write any 5 points. ठीक है जी. इसी क्वेश्चन को और करके लिख लो. और what is the importance of roadways over railways in India? Write any 5 points. ठीक है जी, write any 5 points. So now देखो बेटा, अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है, या नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, द importance of roadways over
रेलवेज। मतलब कि हमने रोडवेज की इंपॉर्टेंस को रेलवेज के ऊपर प्रूव करना है। हमने ये प्रूव करना है कि रोडवेज कैसे रेलवेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। देखो, अंडरलाइन द फर्स्ट पॉइंट प्लीज। नंबर 1, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज इज मच लोअर देन दैट ऑफ द रेलवेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीधा इसका हेडिंग बनाना होगा। इसका हेडिंग क्या बनाओगे आप लोग? लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लोअर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोडवेज, ऐसे नहीं, ऑफ रोडवेज। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग। देखो बेटा, बिल्कुल सही बात है। रोडवेज मतलब कि रोड बिछाना ना रेलवे लाइन बिछाने के मुकाबले ज़्यादा सस्ता पड़ता है। जो रेलवे लाइन है आपको पता है वो आयरन एंड स्टील से बनती है। उसके अलावा उसको बहुत सारे एरियाज़ में से बिछाना बहुत मुश्किल भी होता है। ठीक है, उसके लिए बड़े बड़े पुल वगैरह बनाने पड़ते हैं। कहीं पर कोई पहाड़ आ जाए तो फिर टनल बनानी पड़ती है। बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसीलिए कहते हैं जो रोडवेज रोड बिछाना है ना, वो रेलवे लाइन बिछाने के मुकाबले ज़्यादा सस्ता पड़ता है, ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग अगर चाहे पैसे बजट ज़्यादा नहीं भी है तब भी हम लोग रोडवेज को ईजिली बिछा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द रेलवेज। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फर्स्ट रीज़न due to which we are saying that roadways have an edge over railways in the countries like India, because roadways have lower construction cost as compared to the railways. ठीक है जी। नंबर 2, बी पॉइंट देखो, अंडरलाइन प्लीज। रोड्स कैन ट्रावर्स कंपैरेटिवली मोर डायसेक्टेड एंड अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी। बहुत अच्छा पॉइंट है। रोडवेज कैन ट्रावर्स unlike the railways। कहते हैं रोडवेज जो है ना ये ट्रावर्स कर सकती हैं। ट्रावर्स मतलब इन दिस वे, ऐसे इन दिस वे। आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों की तरफ जाते हो तो रोडवेज जो होती है ना वो घूमते हुए जाती है, टेढ़ी मेढ़ी ऐसे गोल गोल ऐसे घूमते हुए जाती है। क्या ऐसे तो हम लोग रोडवेज को बिछा सकते हैं, लेकिन क्या रेलवेज को भी हम ऐसे बिछा सकते हैं? ऐसे इस पैटर्न में कभी भी नहीं बिछा सकते। रेलवेज के लिए हमें बिल्कुल सीधी रेलवेज ही लेकर जानी पड़ेगी। अगर रास्ते में कोई खाई आ जाती है तो हमें पहले वहाँ पर पुल बनाना पड़ेगा, कोई पहाड़ आ गया तो हमें टनल खोदनी पड़ेगी। लेकिन रोडवेज की फ़ायदा क्या है कि कई बार हम लोग टनल नहीं भी खोदते, हम लोग पहाड़ को साइड से काटते काटते उसके अंदर से गोल गोल घुमाती हुई ऐसे ट्रावर्सिंग करती हुई रोडवेज को बिछा देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि रोडवेज को बिछाना रेलवेज के मुकाबले ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है ना। तो दैट इज ऑल्सो रीजन दैट रोडवेज हैज़ एन एज ओवर रेलवेज इन इंडिया, बिकॉज रोडवेज कैन ट्रावर्स इन दिस वे। रोडवेज कैन ट्रावर्स बट रेलवेज कैन नॉट। रेलवेज शुड बी स्ट्रेट ऑलवेज। तो ये भी एक एडवांटेज है रोडवेज का रेलवेज के ऊपर। नेक्स्ट, नंबर सी टिक करो बेटा। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एज सच कैन ट्रावर्स द माउंटेन्स सच एज द हिमालयंस। ठीक है ना। तो इसकी हेडिंग क्या बनेगी? रोडवेज कैन बी स्लोपी अनलाइक द रेलवेज। रोडवेज स्लोपी भी बन सकती है। हम लोग ढलान पर भी रोड बना सकते हैं, हम लोग चढ़ाई पर भी रेलवेज बना सकते हैं, रोडवेज बना सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या हम लोग रेलवेज को ढलान पर चढ़ाई पे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब देखो ना, कोई पहाड़ ऊपर की तरफ को जा रहा है थोड़ा सा, तो हम लोग रोडवेज को ऐसे चढ़ान करते ऊपर की तरफ बना सकते हैं। कोई ढलान में तो ढलान में भी बना सकते हैं, चढ़ान में। ठीक है ना। ढलान और चढ़ान दोनों में रोडवेज को बनाया जा सकता है। मतलब कि रोडवेज को स्लोपी में बनाया जा सकता है। लेकिन रेलवेज को आपको हर हाल में सीधे ही बनाना पड़ेगा, चाहे आप बड़े बड़े ब्रिज बनाओ, चाहे आप बड़े बड़े टनल्स बनाओ, जो मर्जी करो, रेलवेज का आपको सीधे बनाना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि बनाने का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए रोडवेज कैन बी स्लोपी इन द माउंटेनियस रीजन्स बट रेलवेज कांट बी स्लोपी। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हिमालयन रीजन्स में आपको रोडवेज काफ़ी ज़्यादा मिलती है बट रेलवेज बहुत कम मिलती है। ठीक है, ये एक रीज़न। तो इस वजह से रोडवेज हैव एन एज ओवर रेलवेज। ठीक है। नेक्स्ट, डी ऑप्शन। Road transport is economical in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over shorter distances. Next, इसकी हेडिंग क्या बनेगी? डी ऑप्शन। cheaper mode of transportation for short distances।
और शॉर्ट डिस्टेंसेस। कहते हैं जो रोडवेज है ना, रोडवेज है ये अगर हमने शॉर्ट डिस्टेंस तय करना है ना उसके लिए ज़्यादा सस्ता और कन्वीनियंट पड़ता है। अगर तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय करना है तब तो डेफिनेटली रेलवेज ही ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने जलंधर से दसूहा जाना है, ठीक है, आपने जलंधर से लुधियाना जाना है, आपने अमृतसर से जलंधर जाना है, ऐसे मतलब छोटा डिस्टेंस ही कवर करना हो, तो उससे क्या होता है, उसके लिए आपको ना रोडवेज ज़्यादा चीपर और ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। अगर तो आपने बहुत लंबा डिस्टेंस तय करना, मान लो आपने दिल्ली से चेन्नई जाना है, आपने अमृतसर से गुवाहाटी जाना है, फिर तो आपको डेफिनेटली रेलवेज ठीक रहेगी। लेकिन अगर आपने शॉर्टर डिस्टेंस, अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए अगर आप चीप मोड कोई सस्ता साधन चाहते हो तो वो आपको रोडवेज ही है। मतलब कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए एक सस्ता जो साधन है वो आपका रोडवेज है, ना कि रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, रेलवेज लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सही है, बट रोडवेज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़्यादा सस्ता पड़ता है। क्लियर, ये भी एक एडवांटेज है रोडवेज का रेलवेज के ऊपर। नेक्स्ट ये ऑप्शन, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, thus द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। ये भी सही है, इसका यही हेडिंग बनेगा, डोर टू डोर सर्विस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोर टू डोर सर्विस। देखो बेटा, सड़क जो है ना हमारे घर के दरवाजे तक आती है, क्या रेलवे लाइन हमारे घर के दरवाजे तक आती नहीं आती। रेलवे लाइन के लिए अगर आपको मतलब कि आपको रेल में बैठना है, ट्रेन में बैठना है, तो आपको हर हाल में रेलवे स्टेशन ही जाना पड़ेगा। ट्रेन आपके घर के सामने तक नहीं आएगी आपको उठाने के लिए, ठीक है ना, आपको खुद ट्रेन के रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। लेकिन जो सड़क है ये हमारे घर के दरवाजे के सामने तक आती है, मतलब कि डोर टू डोर सर्विस। जो सड़क है ये हमारे घर के सामने से मिलती है, हमारे घर के सामने तक आती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल घर से लेकर जहां हमने जाना है वहां तक कर सकते हैं। अनलाइक द रेलवेज के लिए हमें हर हाल में रेलवे स्टेशन ही जाना पड़ेगा, ट्रेन हमारे घर तक नहीं आएगी, ठीक है ना। तो दैट्स वाई रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस टू द पैसेंजर्स या टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो दैट्स वाई रोडवेज हैज़ एन एडवांटेज ओवर रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट एक और ऑप्शन, इसका 6th ऑप्शन, ये भी कर लेना, अंडरलाइन कर लो। Road transport is also used as a feeder to the other modes of transport, such as they provide link between railway stations and airports and all these. बहुत ही अच्छा पॉइंट है। Roadways act as a feeder service. Roadways act as a feeder service. एक्ट एज अ फीडर सर्विस, ठीक है, फीडर सर्विस फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे लिखो, फॉर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे लिखो। जो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। रोडवेज कहते हैं ये ना फीडर सर्विस की तरह काम करती है। फीडर सर्विस क्या होती है, ऐसी सर्विस जो आपको दूसरी सर्विसेज तक पहुंचने में मदद करती है। जैसे मान लो आपने अपने घर से ट्रेन पकड़नी है तो आपने स्टेशन तक जाना है, तो अब स्टेशन तक जाने के लिए सबसे पहले आप किसका इस्तेमाल करोगे, रोडवेज का, ठीक है ना। आपके घर के सामने से रोड जा रही है, आपने रोड पर से जाकर खुद स्टेशन तक पहुंचना है, तो रोड आपको फीडर सर्विस का काम कर रही है स्टेशन तक पहुंचाने के लिए। आपने मान लो हवाई जहाज पे पकड़ना है, आपने वो करना है, एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। अब फ्लाइट आपके घर की छत पे तो उतरेगी नहीं, ठीक है ना, तो आपको एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा। लेकिन एयरपोर्ट जाने के लिए आप सबसे पहले किसका इस्तेमाल करोगे, रोडवेज। आप रोड का यूज़ करके बाय कार बाय बाइक आप सबसे पहले रोड का इस्तेमाल करके पहले एयरपोर्ट तक जाओगे, फिर एयरपोर्ट से आप लोग फ्लाइट पकड़ोगे। यही चीज़ शिप पे लागू होती है। अगर मान लो आपने पानी के जहाज़ से जाना है, पानी के जहाज़ से आपने मान लो मुंबई से आपने लंदन जाना है सपोज पानी के जहाज़ से, तो उसके लिए भी आप सबसे पहले मुंबई तक जाने या अपने घर से लेकर सी पोर्ट तक जाने के लिए किसका इस्तेमाल करो, रोडवेज का। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट रोडवेज एक्ट एज ए फीडर सर्विस। रोडवेज जो है बाकी सारी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए फीडर सर्विस का काम करती है, मतलब कि बाकी सारी सर्विसेज तक पहुंचने में हमारी मदद करती है। मैंने एयरपोर्ट जाना है तो सबसे पहले मैं रोड का इस्तेमाल कर रहा हूं, रोड इस्तेमाल करके मैं एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं। मैंने ट्रेन पकड़नी है तो स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाने के लिए पहले रोड यूज करके स्टेशन तक जा रहा हूं, फिर मैं ट्रेन पकड़ रहा हूं। मैंने शिप में जाना है तो पहले रोड का इस्तेमाल करके मैं पोर्ट तक जा रहा हूं, फिर मैं उधर से शिप पकड़ रहा हूं। तो सबसे पहले रोडवेज एक्ट एज ए फीडर सर्विस फॉर ऑल अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी एक एडवांटेज है रोडवेज का ओवर रेलवेज, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज।
ठीक है जी बेटा। तो दीज वर द 6 पॉइंट्स ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज ओवर रेलवेज, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रोडवेज के अंदर ही, देखो ये मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट है इंडिया, इन इंडिया रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 6 क्लासेस, तो वो हम देखते हैं। क्वेश्चन लिख लो, राइट द क्वेश्चन। give the classification of roadways in detail with proper headings. Give the classification of roadways in detail with proper headings, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, अगर हमने रोडवेज की क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज इन इंडिया, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है प्यारे बच्चों, दैट इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ये लिखो। चलो अच्छा जी, अब देखो बेटा, इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। ये साथ साथ ना मैप देख जाओ प्लीज, नेक्स्ट पेज पर, पेज 83 के ऊपर आपका मैप दिया, वो बड़ा अच्छा मैप को देखो। इसमें ये जो आपकी गोल्डन कलर की लाइन जा रही है, देखो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अगेन दिल्ली, ये जो गोल्डन कलर की लाइन जा रही है ना, जो चारों मेट्रो सिटीज को कनेक्ट कर रही है, दिस इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये हमारे इंडिया की क्या है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वो इसके नाम से क्लियर हो रहा है। इसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। अब मैं समझा देता हूँ सुपर हाईवेज क्या है, पहले मैं ये समझा दूँ ये है क्या। देखो यहाँ पे है सपोज दिल्ली, नॉर्थ में दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे है मुंबई, इधर है चेन्नई और इधर है कोलकाता। मतलब कि इंडिया के 4 कोनों में 4 मेट्रो सिटीज़ हैं। तो इन चारों मेट्रो सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम ये हाईवेज जो कर रहे हैं ना, इसको हमने नाम दिया हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये देखो क्वाड्रिलेटरल की शेप में, क्वाड्रिलेटरल मैथ्स में पढ़ते हो ना आप लोग, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर की शेप में होता है, तो ये 4 साइड्स, ये देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल विच कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। मतलब कि द सुपर हाईवेज दैट कनेक्ट द 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया आर नोन एज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब सवाल उठता है कि सुपर हाईवेज क्या है। सुपर हाईवेज होता है बेटा ये ना 4 to 6 लेन हाईवेज। सुपर हाईवेज आर 4 to 6 लेन हाईवेज, 4 to 6 लेन हाईवेज, ठीक है, दैट डू नॉट हैव any railway crossing or traffic lights, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है, इन द वे लिख लो, इन द वे, ठीक है। तो मतलब सुपर हाईवेज क्या होते हैं, 4 to 6 लेन हाईवेज, 4 से 6 लेन के हाईवे। इसमें कहीं पर भी आपको 1 लेन सड़क नहीं मिलेगी, कहीं पर भी बाय लेन 2 लेन सड़क नहीं मिलेगी, सभी जगह आपको 4 to 6 लेन हाईवे मिलेगी, 4 to 6 लेन रोड मिलेगी। तो सुपर हाईवेज उन रोड्स को बोलते हैं जो 4 to 6 लेन की होती हैं, और कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 95% तक ऐसा एरिया आपको मिलेगा जहाँ पर ना तो आपको कोई रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी, ना आपको कोई ट्रैफिक लाइट्स मिलेगी। अगर मान लो कोई रेलवे लाइन रास्ते में आती है तो उसके ऊपर से ब्रिज निकाला जाएगा, कोई ट्रैफिक लाइट का वाला एरिया आता है तो उसके ऊपर से पुल फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो मतलब कि आपके रास्ते में ना तो कोई रेलवे क्रॉसिंग आती है ज़्यादातर एरिया में, और ना ही कोई ट्रैफिक लाइट्स आती है ज़्यादातर एरिया में, ठीक है। 95-96% एरिया तक ये सब नहीं आती, ठीक है। तो और हमेशा सड़क अब कौन सी मिलेगी, 4 to 6 लेन है, 4 to 6 लेन में कभी भी 1 लेन या 2 लेन सड़क नहीं होगी। तो ऐसे हाईवेज को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, सुपर हाईवेज। ऐसे हाईवेज को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें 4 से 6 लेन की सड़क हो और ना कोई रेलवे क्रॉसिंग हो और ना कोई ट्रैफिक लाइट हो, ऐसे हाईवेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर हाईवेज। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऐसा सुपर हाईवे है जो हमारे 4 मेट्रो सिटीज को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ने का काम करता है। ऐसे सुपर हाईवे को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। क्लियर, आपके मैप पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो गोल्डन कलर की लाइन बनी, दैट इज योर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ रोडवेज दैट आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट नंबर 2,
अंडरलाइन नंबर 2, नेशनल हाईवेज। शॉर्ट फॉर्म NH, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, एक और टर्म आ रही है, दैट इज़ योर नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज भी हाईवेज ही हैं, यहाँ पर भी ट्रैफिक काफ़ी फास्ट चलता है, पर ये सुपर हाईवेज से थोड़े कम लेवल के हैं, ठीक है। ये मतलब कि हाईवेज तो हैं, लेकिन ये उनके मुकाबले थोड़े सुपर हाईवेज के मुकाबले थोड़ा सा कम लेवल के हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। नेक्स्ट पेज पर मैप देखो, पेज नंबर 83 पर, जो ये आपके सुपर हाईवेज है ना, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये सारे आपके सुपर हाईवेज है। लेकिन ये जो वाइट कलर की लाइंस बनी हुई जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 6, 5, 7, ये जो नंबर लिखे हुए हैं वाइट कलर की लाइंस, ये है आपके नेशनल हाईवेज, ठीक है। अब इनका जाल पूरे देश में बिछा हुआ, देखो पूरे कंट्री में ही फैले हुए, जबकि जो सुपर हाईवेज है ये सिर्फ 3 ही है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो ये तो सिर्फ कुछ पार्ट्स में से निकल रहे हैं, बाकी पूरे देश में जो नेटवर्क निकल रहा है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ये आपके इसी नेशनल हाईवेज का ही। तो ये नेशनल हाईवेज इंडिया के पूरे एक एक कोने में फैले हुए हैं, तो दैट इज वाई इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे देश के लिए, नेशनल हाईवेज की, NH की। एक और बात, नेशनल हाईवेज सुपर हाईवेज के आने से पहले तक अकेले नेशनल हाईवेज ही थे। मैं आपको बताना चाहूँगा, सुपर हाईवेज का जो कंसेप्ट है ना, जो भी हमने अभी किया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये जो सुपर हाईवेज है ये 2001-2002 के बाद से आए हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने पहली बार इनका मतलब कि निकाला था प्रोजेक्ट, ये सुपर हाईवेज का, तो 2002 में आए थे और फिर 2002, 3, 4 से बनने स्टार्ट हुए थे प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन उससे पहले तक इंडिया में जो सड़कें थी, जो फास्ट सड़कें थी, उनको हम लोग यही बोलते हैं, नेशनल हाईवेज। मतलब कि सुपर हाईवेज के आने से पहले तक सबसे फास्ट मोड ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन क्या था आपका, नेशनल हाईवेज, ठीक है। उसके बाद फिर इससे भी ऊपर लेवल के बनाए गए सुपर हाईवेज 2002 से 2003 के बीच में, मतलब काफ़ी टाइम लगा, शुरुआत 2002-2003 में की, ठीक है। तो वो सुपर हाईवेज के आने से पहले सिर्फ यही होते थे, नेशनल हाईवेज, और इनका जाल पूरे देश में बनाया गया। अंडरलाइन प्लीज, नेशनल हाईवेज लिंक द एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड बाय द मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। Please underline the name, very important name, Central Public Works Department, CPWD, ठीक है। मैं आपको बता, अच्छा आपने जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखा ना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, उसके लिए अंडरलाइन कर लो, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखा था उसमें लिख लो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बेटा अभी लिखवाया था मैंने, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में इसको किसने बनाया हुआ है, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को और आपकी जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जो आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यानी कि इन सभी सुपर हाईवेज को, SH, इन सभी सुपर हाईवेज को बनाने का और मेंटेन करने का काम कौन करता है, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सभी सुपर हाईवेज, और जो नेशनल हाईवेज है NH को बनाने का और मेंटेन करने का काम कौन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। ये भी एक फर्क है SH और NH में। क्वेश्चन लिखो, इसके 3-4 क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन SH एंड NH, राइट एनी 3 पॉइंट्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन SH सुपर हाईवेज, ठीक है, एंड NH नेशनल हाईवेज, राइट एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, और साथ साथ जो है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इन सबको किसने बनाया, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन लिख लो प्लीज, 1 मार्क्स क्वेश्चन लिख लो। विच गवर्नमेंट एजेंसी constructs and maintains the super highways like the golden quadrilateral, north south corridor and east west corridor. Answer is National Highways Authority of India, NHAI, ठीक है। यही चीज़ के ऊपर भी लागू होती है। विच गवर्नमेंट एजेंसी
constructs and maintains the NH, the maintains the National Highways of India. That is Central Public Works Department, CPWD. ठीक है, चलो ठीक है, ये बना रही है आपकी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में. A number of major national highways run from north to south and east-west directions. The historical शेरशाह सूरी मार्ग that is called NH1 between Delhi and अमृतसर. ठीक है, ये सारे हमारे देश के NH जो हैं, जैसे कि NH1 जो है ये हमारा कौन सा है, ठीक है, NH1 हमारा कौन सा बेटा, अमृतसर टू दिल्ली, या दिल्ली टू अमृतसर. ठीक है, इसको हम लोग ना ये वैसे चलती है अमृतसर से कोलकाता तक जाती है. इसको हम लोग आमतौर पे अपना GT रोड भी कहते हैं. ठीक है, ये भी आपके नेशनल हाईवे में थी, जिसको हमने एक और नाम दे रखा है शेरशाह सूरी मार्ग. ठीक है, क्योंकि ये किंग शेरशाह ने सबसे पहले ऐसी बनवाई थी, तो बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड नाम बाद में दिया गया, इसको हम लोग शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं. ठीक है, तो नेशनल हाईवेज जो है आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाए जाते हैं. ठीक है, और ये हमारे देश के कोने कोने को जोड़ने का काम करते हैं. These highways connect all the important locations in the country. तो इसका मतलब NH बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू सुपर हाईवेज. सुपर हाईवेज तो है ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन NH की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये सारे देश को कनेक्ट करते हैं. सुपर हाईवेज पूरे देश में नहीं, लेकिन नेशनल हाईवेज पूरे देश में, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, दिस वॉज योर नेशनल हाईवेज. अच्छा, अब मैं फिर से फर्स्ट पॉइंट पर आया बेटा, जो अभी अपने पहले पॉइंट किया सुपर हाईवेज, उस पर ज़रा बैक आओ. ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया. अब बैक टू फर्स्ट पॉइंट. जो बैक टू फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें जो अभी हमने पहले किया, हमने जो पहले क्वेश्चन किया वो था हमारा गोल्डन कोऑर्डिनेटर. ठीक है, गोल्डन, आई एम सॉरी बेटा, वो फ़ोन आ गया था बीच में ज़रा, तो वीडियो रुक गया था, तो दोबारा स्टार्ट किया है. ठीक है, सॉरी, फ़ोन आ गया था बीच में. चलो, गोल्डन कोऑर्डिनेटर. अच्छा, इसकी गोल्डन कोऑर्डिनेटर से पहले ना हेडिंग बनाओ आप लोग. आपने गोल्डन कोऑर्डिनेटर हेडिंग नहीं बनाना, आपने हेडिंग बनाना है सुपर हाईवेज. ये हेडिंग बनाओ, सुपर हाईवेज, ऐसे हेडिंग बनाओ. पहले आपने जो अभी हमने हेडिंग बनाई थी नेशनल हाईवेज, ठीक है, उससे पहले हेडिंग बनाओ सुपर हाईवेज, ऐसे बनाओ. उसके अंदर सुपर हाईवेज के अंदर फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है गोल्डन कोऑर्डिनेटर. ठीक है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर ये हमारा हो चुका है. ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट हेडिंग. ठीक है, मतलब मेन हेडिंग बनी सुपर हाईवेज, मेन हेडिंग बनी सुपर हाईवेज SH. उस SH के अंदर जो फर्स्ट हेडिंग बनेगी सब पार्ट, वो बना गोल्डन कोऑर्डिनेटर, वो हमने कर लिया. अब इसी सुपर हाईवेज के अंदर सेकंड हेडिंग बना रहे हैं हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ठीक है, ये फर्स्ट हेडिंग, अब ये सेकंड हेडिंग. अब इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ये भी क्या है, ये भी 4 to 6 लेन सुपर हाईवे है. सुपर हाईवे that connects northern India with the southern India. यू कैन सी इन योर मैप ऑल्सो. आप देख सकते हो मैप पर ये जो ब्लैक से कलर की, ग्रे से कलर की लाइन है, जो ऊपर श्रीनगर से, उरी श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक जा रही है, दैट इज़ योर दैट इज़ योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. सॉरी, दैट इज़ योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. मतलब कि ऐसी 4 to 6 लेन सुपर हाईवेज, ठीक है, जो कि नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. इसमें भी आपको 4 to 6 लेन सुपर हाईवेज ही मिलेंगे. ठीक है, तो ये मेन हेडिंग है बेटा, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, मेन हेडिंग है सुपर हाईवेज, नॉट गोल्डन कोऑर्डिनेटर. सबसे मेन हेडिंग चेंज कर लेना, सबसे मेन हेडिंग है सुपर हाईवेज, उसके अंदर पहली हेडिंग है गोल्डन कोऑर्डिनेटर. सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ठीक है, ये चेंज कर लेना हेडिंग, प्लीज करेक्शन कर लेना. सुपर हाईवेज फर्स्ट पार्ट गोल्डन कोऑर्डिनेटर, दैट इज ऑलरेडी ओवर. नेक्स्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर. ठीक है, दैट कनेक्ट्स नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, दैट कनेक्ट्स नॉर्थ इंडिया विद द साउथ इंडिया. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ग्रुप में देख लो, ठीक है, जो हमारे इंडिया को
मतलब कि नॉर्थ इंडिया को नीचे साउथ इंडिया से जोड़ने का काम करते हैं, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। ठीक है, अब थोड़ा इसका एक्सटेंशन करके उरी तक भी लगा दिया गया, तो ऐसे उरी टू नीचे कन्याकुमारी, मतलब कि नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया। ऐसे नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक कनेक्ट करने के लिए जो 4 to 6 लेन सुपर हाईवेज बनाए गए हैं, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसको हमने नाम क्या दिया, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। 4 to 6 लेन सुपर हाईवे दैट कनेक्ट्स नॉर्थ इंडिया विद सदर्न इंडिया, दैट इज नोन एज योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्लियर बेटा, ये है सेकंड पॉइंट, सुपर हाईवेज का सेकंड पॉइंट, दैट इज योर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब इसी सुपर हाईवेज के अंदर थर्ड पॉइंट, इसी सुपर हाईवेज के अंदर थर्ड पॉइंट, दैट इज योर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, अब इसके भी नाम से क्लियर हो रहा है, आप लोग मैप पर देख सकते हो, ये जो रेड कलर की लाइन असम की तरफ चल रही है। रेड कलर की लाइन असम से लेकर नीचे गुजरात तक, लेफ्ट साइड गुजरात तक जा रही है, पोरबंदर तक, दैट इज योर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये भी क्या है, अगेन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इज अगेन 4 to 6 लेन सुपर हाईवेज दैट कनेक्ट्स 4 to 6 lane super highways that connects eastern India with the western India. ठीक है, these are known as ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सुपर हाईवेज। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से जोड़ने का काम करते हैं विद 4 to 6 लेन रोड्स। ठीक है, ऐसे सुपर हाईवेज को हमने क्या नाम दे रखा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आप लोग अपने मैप पर देख सकते हो। ठीक है, मैप पर रेड कलर की लाइन जो दी है दैट इज योर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ये क्या कर रही है लाइन, यानी कि ये सड़क क्या कर रही है आपके सिलचर इन असम टू इन दिस वे, ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ पोरबंदर इन गुजरात। मतलब कि ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने का काम कर रही है, थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे टेढ़ी जाती लाइन ये, तो ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से जोड़ने का काम कर रही है सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। ये सुपर हाईवेज क्या है, 4 to 6 लेन। ठीक है, 4 to 6 लेन हाईवेज दैट कनेक्ट्स ईस्ट इंडिया विद वेस्ट इंडिया इज नोन एज योर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है ना, ईस्ट को वेस्ट से जोड़ने का विद 4 to 6 लेन रूट्स, दैट इज योर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सुपर हाईवेज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, सुपर हाईवेज। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है एनएच, नेशनल हाईवेज, जो हमने अभी पढ़ा। ये सारे पार्ट्स थे सुपर हाईवेज। फर्स्ट पार्ट सुपर हाईवेज का क्या था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सेकंड पार्ट सुपर हाईवेज का क्या हुआ, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। थर्ड पार्ट सुपर हाईवेज का क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो दैट मीन्स आपके सुपर हाईवेज के 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, 3 सब पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपका आ रहा था नेशनल हाईवेज, जो कि आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाता है। इन सारे सुपर हाईवेज को सभी को कौन बनाता है, एनएचए। सभी एनएचए। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है उसको भी कौन बनाता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये वाला, इसको भी कौन बनाता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसको भी कौन बनाता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन तीनों सुपर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने का और इनकी मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके दसुआ में आपके स्कूल के आगे से जो मेन हाईवे निकलता है, वो हाईवे भी आपका कौन सा आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। जो दसूहा में आपके इधर से निकलता है ना, जो ये सड़क कहाँ से आ रही है, जम्मू के ऊपर श्रीनगर से। तो श्रीनगर से लेकर इंडिया को उस कनेक्ट करती है कन्याकुमारी तक। तो वो क्या है, 4 to 6 लेन रोड। और वो सड़क कौन सी, दसूहा वाली, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, और उसको भी आपने देखा होगा रास्ते में, जब जलंधर को जाते हैं टोल प्लाजा आता है, तो वो टोल प्लाजा के ऊपर देखना कभी लिखा होगा NHAI, देखना कभी, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो जितने भी कॉरिडोर्स हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इन तीनों सुपर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करने और मेंटेन करने का काम कौन करता है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर, ये सभी ने याद रखना।
जो आपके दसुआ के सामने से जो सड़क निकलती है 4 to 6 लेन रोड, वो कौन सी है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। और उसको भी बनाने का और कंस्ट्रक्ट करने का काम किसने किया? NHAI। क्लियर। नेक्स्ट था आपका नेशनल हाईवेज, उसको बनाता कौन है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके आगे आएंगे बेटा स्टेट हाईवेज, थर्ड पॉइंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस वॉज इट टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।